Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Tahirullah. I am a lecturer at Islamabad College for Boys G63. So this is our second lecture. Before this, we have studied first lecture. In first lecture, we have studied a theorem 8.1, where here is a theorem 8.2. So in 8.1 theorem, we have studied, which is about the obtuse angle triangle. We have studied in that theorem that the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to sum of the squares on the side containing the obtuse angle together with twice one of the side containing the rectangle and projection of the other on it. So in that theorem we have prove that a square is equal to b square plus c square minus 2cx, plus 2cx. In that theorem we have studied this one. Now this theorem 8.2 is about the acute angle triangle, and I have told you that acute angle triangle is a triangle in which all the three angles are less than 90 degree. So if we look at this figure, then ABC is a triangle in which angle A, angle B and angle C, all the three angles are less than 90 degree. So in this theorem, the statement of the theorem is, in an acute angle triangle, the side opposite to the acute angle is equal to, the square on the side opposite to the acute angle is equal to sum of the sides containing the obtuse angle, sum of the squares on the side containing the acute angle, diminished mean reducing, to reduce something. So diminished का मतलब यहाँ मैथमेटिक्स में हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, कि माइनस 2 टाइम माइनस diminished twice one of the side containing the rectangle, and projection of the other on it. तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ABC हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है. वैसे हम B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि A ले रहे हैं तो इस वजह से हम थ्योरम को इसके मुताबिक लिखेंगे. अगर आप B लिखेंगे तो B के मुताबिक हम थ्योरम को लिखेंगे. अगर C हम लिखेंगे, कंसिडर करेंगे, तो फिर C के मुताबिक थ्योरम को लिखेंगे. लेकिन यहाँ पे हम A को कंसिडर कर रहे हैं तो इस वजह से हम बाकी सारी चीजें जो है वो A के मुताबिक लिखेंगे. सो फिगर स्टेटमेंट हमारे पास फिगर के साथ हम जो है वो रिलेट करते हैं. स्टेटमेंट ये है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ABC हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A को हम एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं. तो क्या होगा, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल. इस A की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, ये BC बन रही है जिसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स, sum of the squares on the side which contain the acute angle. तो acute angle हमारे पास तो ये A है, किस साइड से बनी हुई है, ये AC और AB से बनी हुई है जिसको हमने स्मॉल b और स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है. So this A square will be equal to sum of the square of the acute angle which is b square plus c square diminished one of the side. अब देखिए इन दोनों में से one of the side हम ये ले रहे हैं जो कि containing the rectangle. अगर मैं इसको ये rectangle फर्ज करें इस तरह कंप्लीट कर दूं तो ये एक साइड है जो कि इस एंगल में भी आता है, ट्रायंगल में भी आता है और ये रेक्टेंगल का भी हिस्सा बन जाता है. तो डिमिनिश वन ऑफ द साइड containing the rectangle, तो वो साइड हमारे पास कौन सी साइड है, AB साइड है जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है. तो -2 टाइम C and projection of the other on it. अब इस साइड को तो हमने रेक्टेंगल में सपोज किया, तो ये दूसरा साइड है, इसका हमारे पास जो साया बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा. प्रोजेक्शन मीन पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये इसका मतलब क्या है, साया है.
प्रोजेक्शन का मतलब साया। तो ये साया है जो कि AD से हमने रिप्रेजेंट किया या X से रिप्रेजेंट किया है। सो 2 टाइम -2 टाइम CX, 2 टाइम one of the side containing the rectangle and projection of the other on it। इसी पर प्रोजेक्शन दूसरे साइड का कौन सा बन रहा है, ये AD बन रहा है जिसको हमने X से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमने प्रूफ करना होगा। अब जैसे आपको पता है कि थ्योरम में हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फिगर को ड्रॉ करना होगा। जब फिगर नहीं होगा या इनकम्प्लीट होगा या रॉन्ग होगा तो उस थ्योरम के आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम थ्योरम में सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर हमने ड्रॉ किया, ABC हमने ट्रायंगल लिया। अब जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो हम लिखेंगे। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें गिवन लिखते हैं। सो गिवन में हम ये सारी चीजें, सारी बातें जो अभी हमने की है वो हम लिखेंगे। तो गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल हमने लिया ABC जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल in which angle CAB, which is this one, CAB, this is an acute angle, ये acute angle है। अब हम इसमें थोड़ी सी बातें जो है ना और लिखते हैं कि ड्रॉ या परपेंडिकुलर CD on AB। ये वैसे तो कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए था लेकिन चूंकि बुक में यही लिखा है तो हम बुक को फॉलो करते हैं, इस वजह से हम ये लिखते हैं। और आपने भी बुक को फॉलो करना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बोर्ड में अक्सर जो लोग बैठे होते हैं वो मैथमेटिक्स बाज़ औक़ात जो है ना वो नहीं पढ़ाते, तो वो फिर इस चीज़ को देखते हैं कि बुक में तो ये नहीं लिखा, इस तरह लिखा हुआ है, बच्चे ने ये लिखा है, तो वो अक्सर नंबर नहीं देते। तो इस वजह से हम बुक को ही फॉलो करते हैं। सो बुक में गिवन में ही लिखा है कि ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB। तो मैं ये लिख लेता हूं, वैसे ये कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे बुक में लिखा है तो लिहाजा हम मजबूर हैं, हम भी यही लिखेंगे। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB साइड। ये ग्रीन लाइन से डॉटेड लाइन है, CD हमने ड्रॉ किया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो राइट एंगल बनाएगा, वो यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट एंगल बनाएगा। So perpendicular on AB. Now let us reduce or work. So we simplify these symbols. Instead of AC we can write B, instead of AB we can write C, and instead of BC we can write A. So take AB side equal to small b, BC side equal to small a, and AB equal to small c. AD equal to x and CD equal to h। ये हमने अपने शॉर्ट करने के लिए सिंबल्स इस तरह दे दिए। ये हमारा गिवन होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टू प्रूव होता है कि क्या चीज हम प्रूव करना चाहते हैं वो हमने देखना है। तो वो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको किससे मिलेगा, स्टेटमेंट से आपको मिलेगा कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में लिखा था कि in an obtuse angle triangle the square on the side opposite to the acute angle। तो ये हमने acute angle लिया है, इसका opposite side A है। So square on the side opposite to the acute angle is equal to sum of the squares on the side containing the acute angle। तो वो B और C है, so B square plus C square diminish twice one of the side containing the rectangle and projection of the other on it। ये हमने प्रूफ करना है। अब इसके लिए नेक्स्ट जो हमारा
स्टेप है वो क्या है, वो प्रूफ है। तो प्रूफ में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल CDA measurement of angle CDA is equal to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है। गिवन में हमने लिखा है कि ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB। नाउ जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो CDA राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर या इन अदर वर्ड्स AC होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये क्यों? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर सिंबल को हम चेंज कर दें तो AC जो कि B की इक्वल है B स्क्वायर हो जाएगा, AD X स्क्वायर हो जाएगा और CD हमारे पास H स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी टेक अनदर ट्रायंगल CDB। In triangle CDB, now in triangle CDB, angle CDB is also equal to 90 degree. Measurement of angle CDB is also 90 degree because this is also given कि perpendicular है। So again Pythagoras theorem apply होगा। So BC whole square will be equal to CD square plus DB whole square। और अगर हम इस DB को देखें तो ये किसकी इक्वल है? ये AB माइनस AD की इक्वल है। तो उसकी जगह वो पुट कर लेता हूँ, BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस इसकी जगह अब वैल्यू पुट कर लेता हूँ AB माइनस AD होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यही चीज हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंबल्स चेंज करके यही सिंबल्स हम यूज कर लेते हैं। तो BC किसकी इक्वल है? दैट इज A स्क्वायर। फिर CD की जगह हम लिख सकते हैं H स्क्वायर प्लस AB माइनस AD। AB की जगह हम लिख सकते हैं C, AB ये टोटल माइनस X होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको ओपन करें। सो h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला हमने यूज किया। सो दिस कैन बी रिटन एज c स्क्वायर प्लस माइनस 2cx और प्लस x स्क्वायर plus h square. This is equation number 2. Now look at this one, x square plus h square. Here x square plus h square, this is equal to b square. तो इसकी जगह मैं b square पुट कर सकता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास c square minus 2cx प्लस इसकी जगह b square लिख ले। So ये किसकी इक्वल आ गया? a square की इक्वल आ गया। अब अरेंज कर ले तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx। नाउ अगेन वो दोबारा जो हम वो सिंबल लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा bc का होल स्क्वायर इक्वल टू b हमारे पास इक्वल है ac के, तो ac होल स्क्वायर प्लस c जो है वो इक्वल है ab के, ab होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम cx। तो ab इनटू x है हमारे पास AD और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आप इसको देखें, हमारे पास जो इस पे हमने लिखा था a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। अगर कोई क्वेश्चन है
तो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या कॉलेज से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, हम हर वक्त हाजिर हैं। थैंक यू।